Yes, yes. Okay, so that is all about chapter number 1, where we have find the solutions of the numerical solutions of the linear system. Okay, using numerical methods. Okay, now the second chapter. Okay, so it is totally different than the first chapter. So now we have to find the solution of the ordinary differential equation. Okay, what is by ordinary? Okay, ordinary means you will have only one independent variable. Okay, partial का definition क्या है? More than one independent variable. So here you will have only one independent variable, and we have to find the solution of this ordinary differential equation. Okay, using numerical methods. Okay, आपने जो M2 के टाइम पे लर्न किया था वो एक्चुअली आपका रेगुलर अप्रोच है, जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यूजिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड और यूजिंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड. बट यहाँ पे जो आपको सोल्यूशन कैलकुलेट करना है वो न्यूमेरिकल मेथड से कैलकुलेट करना है. तो ऑटोमेटिकली वो जो आपका सोल्यूशन होगा वो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन होगा, क्योंकि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व करते हो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, सो दैट इज द एग्जैक्ट आंसर, दैट इज द एग्जैक्ट सोल्यूशन. बट यहाँ पे आप जो सोल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हो वो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हो. ओके, सो दैट इज द स्ट्रॉन्ग पार्ट अबाउट द न्यूमेरिकल मेथड्स. ओके, सो in this chapter basically we have to learn the different numerical methods. Okay, to find the solution of. Okay, so in this chapter we focus on only first order. Okay, so here our target is what? We have to find the solution of first order ordinary differential equation of the type dy by dx is equal to f of xy. Okay, so we just focus on this part, dy by dx is equal to f of xy, and we have to find the solution of this type of differential equation. Okay, but not only this. Okay, also there is one more condition with this differential equation. That condition is like this. Okay, y at x naught, where x naught and y naught are the real constant, where y at x naught is equal to y0 or y naught. Okay, and we call it as initial condition. Okay, so this information we have. Okay, we have given the first order ordinary differential equation, that is a differential equation of this type, dy by dx is equal to some function of xy. This is the first order differential equation, and also we have given one initial condition. Okay, what is this? Condition? This is called as initial condition. It means, okay, we have one value. Okay, so this y is the solution. Okay, आपको यहाँ पे बेसिकली y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बिकॉज y इज एक्चुअली द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. और आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? ओके, दिस y और आई कैन से दैट सॉल्यूशन एक्चुअली टेक्स वैल्यू y नॉट. ओके, सो दिस y एक्चुअली टेक्स वैल्यूज y नॉट इफ आई कैलकुलेट एट x नॉट. ठीक है, सो दिस इज द गिवन इन्फॉर्मेशन और आई कैन से इनिशियल कंडीशन. ओके, सो इतने इन्फॉर्मेशन से एक्चुअली आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो जस्ट फ्रॉम दिस वन पर्टिकुलर वैल्यू, ओके, आपको वो सोल्यूशन कैलकुलेट करना है. ओके, और y कैलकुलेट करना है. So in our syllabus there are actually three methods, in which first is Euler's method. Okay, second is modified Euler's method, and third is Ranjagutta fourth order method. Okay, so that is all about chapter 2. Okay, तो इस स्लाइड से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अभी इस चैप्टर में आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, बट नॉट बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, क्योंकि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन आता है आप उसका सॉल्यूशन इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करते हो. तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन के मेथड से कैलकुलेट नहीं करना है. ओके, आपको वो न्यूमेरिकल मेथड से कैलकुलेट करना है. ठीक है, एंड वो कैलकुलेट करने के लिए सिलेबस में सो देयर आर दिस थ्री मेथड्स. वन इज ऑयलर्स मेथड, सेकंड इज मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड, एंड थर्ड इज रंजगुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड. ओके, बट यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको एग्जाम्पल में या एक और कंडीशन गिवन होगी. दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इनिशियल कंडीशन. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन एट वन पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, सो x naught is one fixed point, and we have the value of that solution or the value of y at x naught, and that value is say y naught. ये एग्जाम्पल में गिवन होगा. ठीक है, सो यूजिंग जस्ट वन इनिशियल कंडीशन और यूजिंग जस्ट वन वैल्यू, ओके, आपको सॉल्यूशन या आपको वो पूरा सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है. करेक्ट? ओके, सो let's start with the first method, that is the Euler's method. Okay, so by this method you will have one formula, we call it as Euler's formula. So this yn plus 1, I tell you what is this yn plus 1, yn, h, and so on. So by this method we have one Euler formula, that is yn plus 1 is equal to yn plus h f of xn comma
वाई। तो ये आपका फॉर्मूला, आपको बस इसी फॉर्मूले से ही सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट इज दिस वाई एन प्लस वन एंड सो ऑन एंड व्हाट इज दिस एच, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, हियर एच इज एक्चुअली द इंटरवल, ओके, और आई कैन से a difference between two consecutive values of x, correct, or I can say xn is equal to x naught plus nh, okay। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, x naught आपको x naught की वैल्यू आपके पास गिवन रहेगी, करेक्ट, एग्जाम्पल में गिवन होगी, आपको x naught से x1 कैलकुलेट करना है, ओके, x2 कैलकुलेट करना है, x3 कैलकुलेट करना है एंड सो ऑन, ओके, एंड सेम करस्पॉन्डिंग आपको y नॉट कैलकुलेट करना है। तो y नॉट वहाँ पे गिवन होगा, ये फर्स्ट इटरेशन आपको गिवन ही रहता है, वी कॉल इट एज इनिशियल कंडीशन, करेक्ट, ये आपको गिवन ही होगा, ओके। आपको एक्चुअली यहाँ पे कैलकुलेशन क्या करना है, आपको y नॉट से y1 कैलकुलेट करना है, और आई कैन से अ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टुवर्ड्स अवर सोल्यूशन, ओके। आप ऐसे कैलकुलेट करने वाले, y1 कैलकुलेट करो, उसके बाद y2 कैलकुलेट करो, ओके, उसके बाद y3 कैलकुलेट करो, ओके, एंड सो ऑन like this, okay। So what is relation, so what is this y1 actually, y1 y2 y3, ये बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे हमने डिफाइन करके दिया है, ठीक है। y at x naught, this is very important part क्योंकि ये सारा नोटेशन के ऊपर डिपेंड है, okay। So y at x naught is actually denoted by y naught, okay। तो y naught का सिंपल मीनिंग क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y at x naught, okay, आप ऐसे याद रखो। नेक्स्ट क्या है, what is y1, okay, y1 का मीनिंग क्या है, जस्ट कैलकुलेट y at x1, okay, then you will get y1। तो आपको ये नोटेशन थोड़े बहुत समझ में आ रहे होंगे, ओके। y नॉट बेसिकली क्या होता है, y at x नॉट, y1 बेसिकली क्या होता है, y at x1, ओके, एंड व्हाट इज y2, ओके, y2 इज व्हाट, y at x2, करेक्ट। ऐसे आप कंटिन्यूली ऐसे आपको कंटिन्यूसली कैलकुलेट करते जाना है, y नॉट, फिर y1, फिर y2, y3 एंड सो ऑन, ओके। तो these are all actually the approximations towards your solution, है ना। जैसे आपने प्रीवियस मेथड्स में जैकोब इटरेशन में आप n इक्वल टू 0, मतलब 0th इटरेशन पे आप xyz कैलकुलेट करते हो, फिर नेक्स्ट इटरेशन पे आप xyz कैलकुलेट करते हो, फिर नेक्स्ट स्टेप में भी आप xyz कैलकुलेट करते हो, है ना। आप उसको नोटेशन, आपने नोटेशन में क्या दिया था, x1 y1 z1, फिर x2 y2 z2, देन x3 y3 z3, देन x4 y4 z4। तो ये x1 y1 z1 x2 y3 z3 ये बेसिकली क्या है, जो आपका फाइनल x है, x इज योर एक्चुअल सॉल्यूशन, जो आपका फाइनल x है उसका अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, dy by dx इज इक्वल टू, आपका टारगेट क्या है कि आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, dy by dx इज इक्वल टू f of xy, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आने वाला है, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आने वाला है, y, बट आपको न्यूमेरिकल मेथड से डायरेक्ट y नहीं मिलने वाला, उसका अप्रोक्सीमेट पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे आपको मिलने वाला है, यूजिंग दिस अप्रोक्सीमेशन। तो y नॉट, y1 y2 ये आपको ऐसे कंटिन्यूसली कैलकुलेट करते जाना है, ओके। जब जिस स्टेज पे y आपका स्टेबल हो जाएगा, मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि y3 और y4 ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहे हैं, ओके, लास्ट टू वैल्यूज ये दोनों अगर सिमिलर आ रहे हैं तो वही आपका क्या होगा, फाइनल अप्रोक्सीमेशन होगा, ठीक है। तो इस लॉजिक से एक्चुअली आपको यहाँ पे y कैलकुलेट करना है, ओके। तो आई थिंक अभी के लिए आप बस इतना याद रखो, यहाँ पे बस मुझे नोटेशन से एक्सप्लेन करनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। सो ऑयलर्स मेथड में आपके पास एक फॉर्मूला है जिससे आपको वो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, और आई कैन से द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू f of xy, ओके, इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला yn plus 1 इज इक्वल टू yn plus h into f of xn comma yn, ओके। सो लेट मी इरेज फर्स्ट ऑल दिस एंड okay, so now you just focus on the notations, okay। एग्जाम्पल से ये सिंपल क्वेश्चन है, या इसका एग्जाम्पल भी सिंपल है, तो आपको एग्जाम्पल तो इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ जस्ट फोकस ऑन द नोटेशंस, ओके। तो ये आपका फॉर्मूला है, ओके, और यहाँ से आपको y नॉट, y1, y2, y3, y4 ऐसे वैल्यूज आपको कैलकुलेट करने हैं, ओके। और आपको कौन से स्टेज पे स्टॉप करना है, जब भी आपको जैसे आपको समझ में आता है कि लास्ट टू वैल्यूज आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ओके, और y3 y4 आर ऑलमोस्ट सिमिलर, और y4 y5 आर ऑलवेज ऑलमोस्ट सिमिलर, ओके। इन दैट स्टेज वी हैव टू स्टॉप आवर कैलकुलेशन, एंड दैट फाइनल वैल्यू इज एक्चुअली द सॉल्यूशन ऑफ योर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो y नॉट तो आपको गिवन होगा, y1 आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जस्ट पुट n इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि आपको y1 कैलकुलेट करना है। तो y1 क्या आ जाएगा, सो लेट्स कैलकुलेट दिस, सो y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस h, h आपका क्या होता है,
एच डायरेक्टली एग्जाम्पल में गिवन होगा, एच एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब एक्स नॉट और एक्स वन का जो डिफरेंस आता है और एक्स वन और एक्स टू का ये डिफरेंस इक्वल होता है। तो एक्स नॉट के वैल्यूज में, एक्स एन के वैल्यूज में जो डिफरेंस आता है दैट डिफरेंस इज एक्चुअली एच, और आई कैन कॉल इट एज a step interval, okay, or the difference between two consecutive values of x. Okay, so if I put n equal to 0, here you will get y1 is equal to y naught plus h f of x naught comma y naught, ठीक है। तो f of x y आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, ओके। dy by dx इज इक्वल टू f of x y होता है, राइट साइड में जो भी आपका फंक्शन है दैट फंक्शन वी कॉल्ड एज f of x y, उसमें आप क्या करो x नॉट y1 आपको एग्जांपल में गिवन होगा, तो वहां से आप x नॉट y1 को फंक्शन में पुट करके आपको f of x नॉट y नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, h की भी वैल्यू आपको डायरेक्टली एग्जांपल में गिवन होगी, तो वहां से आप h ले सकते हो, और y नॉट भी आपको डायरेक्टली एग्जांपल में गिवन होता है, तो y नॉट वहां से कंसीडर करो, ओके। तो फ्रॉम दिस एक्चुअली यूजिंग दिस ऑयलर्स फॉर्मूला यू कैन फाइंड दिस फर्स्ट इटरेशन, वी कॉल इट एज फर्स्ट इटरेशन, दैट इज y1। जैसे आपके पास y1 मिलता है, आपको n equal to 1 पुट करना है and you have to go for next iteration, so just put n equal to 1 and find the next value. So if I put n equal to 1, here you will get y2 is equal to, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, प्रीवियस नंबर, n equal to 1, so y1 plus h f of x1 comma y1, ठीक है। अभी आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। तो y1 जो था, ओके, y1 आपने प्रीवियस स्टेप से कॉपी किया या प्रीवियस स्टेप से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट x1 आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो x1 कैलकुलेट करने के लिए आपको इस h फंक्शन का यूज करना है, ठीक है। सो xn फॉर एनी n, ओके, और x नॉट में क्या रिलेशन आता है, xn इज इक्वल टू x नॉट प्लस nh। तो इसमें आप क्या करो, इस इक्वेशन में जस्ट पुट n इक्वल टू 1, if I put n is equal to 1, you will get the value of x1, which is x1 is equal to x naught, आपको पता है ऑलरेडी, x naught plus n is 1, so 1 time h, ठीक है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस h इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ x। तो वहां से आप ये फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। सो इन जनरल xn इज इक्वल टू x नॉट प्लस nh, ठीक है। और ऐसे 1 by 1, तो y2 आपको मिल जाएगा, x1 आपने अभी इस वे से कैलकुलेट किया, तो x1 भी आपके पास है, y1 भी आपके पास है, h गिवन ही है, y1 आपको प्रीवियस स्टेप से कॉपी करना है, ओके। सो इफ आई पुट ऑल दिस वैल्यूज यू विल गेट द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन y2 एंड कंटिन्यू दिस, ओके, एंड कंटिन्यू करो जहाँ पे आपको लगता है कि लास्ट दोनों वैल्यूज इक्वली आ रहे हैं, एंड दैट बिकम योर फाइनल सॉल्यूशन। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस यूलर्स थ्योरम, ओके। वही शायद मैंने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया है, ओके। सो let's see the steps to solve problems on this Euler's method. So first just consider the given differential equation, dy by dx is equal to f of xy, where this initial condition is it's mentioned in every example, that is y at x naught is equal to y naught, okay. Then just calculate the f of x naught y naught, यहाँ से आपको f of x y समझ में आ जाएगा, उसमें x इक्वल टू x नॉट पुट करो, y इक्वल टू y नॉट पुट करो, तो आपके पास f of x नॉट y नॉट की वैल्यू आ जाएगी। एंड जैसे आपके पास f of x नॉट y नॉट की वैल्यू आती है, जस्ट पुट n इक्वल टू 0 हियर, यू विल गेट द फर्स्ट इटरेशन दैट इज y1, ठीक है। अगेन f of x1 y1 कैलकुलेट करो, जहाँ पे y1 आपको यहाँ से लेना है और x1 कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करना है, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। सो जैसे f of x1 y1 मिलता है, पुट n इक्वल टू 1 एंड यू विल गेट योर सेकंड इटरेशन y2 एंड कंटिन्यू दिस, ओके, एंड सो ऑन, कंटिन्यू दिस एंड रिपीट दिस प्रोसीजर टिल टू गेट द स्टेबल वैल्यू फॉर y। जैसे आपको समझ में आता है कि अभी y आपका स्टेबल हो रहा है या लास्ट टू वैल्यूज आपके इक्वल आ रहे हैं, दैट विल बी योर फाइनल सॉल्यूशन, करेक्ट। सो ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आई थिंक थ्योरी से समझ में आ रहा होगा, ओके। सो विल सी सम एग्जांपल्स ऑन दिस डायरेक्टली, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो इस पैटर्न में आपको एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चन आता है, ओके। सो क्वेश्चन इज लाइक दिस, यूजिंग द ऑयलर्स मेथड फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है, तो आप इस मेथड से, ओके, वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन और द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ y, ओके, करस्पॉन्डिंग टू दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट। तो यहाँ पे भी आप जो y की वैल्यू कैलकुलेट करो, दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मे बी इट मीन्स व्हाट, मे बी दैट
value, okay, matches up to 3 digit, maybe that value of y matches up to 4 digit, matches up to 5th digit, and so on, like this. Okay, so find the approximate value y of y corresponding to x is equal to 1. ठीक है, तो इनका कहना क्या है, लास्ट में आप क्या कैलकुलेट करो, y कैलकुलेट करो एट 1, और ये वैल्यू आपको क्या चाहिए, अप्रोक्सीमेट चाहिए. ओके, तो यहाँ से आप स्टेटमेंट 1 से शायद आपको इतना ही समझ में आ रहा है. Find the approximate value of y corresponding to x is equal to 1, means just calculate y at x is equal to 1. Okay, और क्या गिवन है, सो वी हैव गिवन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to x plus 1. ओके, तो आपको देखकर समझ में आ रहा है ये इतना ट्रिवियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, या आप dy by dx minus p of xy लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो. तो अगर आपने इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, दैट इज dy by dx, ओके, माइनस p of x times y, correct, is equal to q of x. So this is your linear differential equation whose integrating factor is e raised to integration of p of x, that is e raised to integration of minus 1 dx, that is e raised to minus x. So this is something e raised to minus x. So your final solution is y into integrating factor. Let me erase this. तो आपका सोल्यूशन क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e रेज टू माइनस x, ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e रेज टू माइनस x इंटू एफ ऑफ x dx प्लस c. ठीक है, और अगर मैं ये इंटीग्रेशन सॉल्व करता हूँ बाय पार्ट्स रूल से और e रेज टू माइनस x को राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ, सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, e रेज टू x इन ब्रैकेट दिस सेम इंटीग्रल, ये जो भी आप सॉल्व करते हो वो. ओके, तो अगर आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व किया, ये जो आपको लास्ट में आंसर मिलता है, दिस इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन. और ये अभी तक आपने इस मेथड से सॉल्व किया है, बट इस केस में या इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको जो सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है वो आपको न्यूमेरिकल मेथड से कैलकुलेट करना है. तो ये जो अभी तक आपको मैंने एक्सप्लेन किया, दिस अप्रोच या इस अप्रोच से आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है. दैट इज द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि आपको ट्रिवियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रहा है, तो आप अपने रेगुलर अप्रोच से सॉल्व करोगे. यहाँ पे y कैलकुलेट किया और लास्ट में क्या करना है, बस x इक्वल टू 1 पुट किया, दैट इज योर फाइनल आंसर. वो करेक्ट है, दैट अप्रोच इज करेक्ट, बट ये क्वेश्चन आपको ऑयलर्स मेथड से ही सॉल्व करना है. तो डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आपने सॉल्व किया, ओके, तो वो जो आंसर होगा वो टोटली आपका रॉन्ग होगा. तो आपको यहाँ पे एग्जांपल ऑयलर्स मेथड से सॉल्व करना है. तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करो, जैसे अभी तक आपको मैंने करके दिया था. ओके, तो क्वेश्चन क्या था कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y कैलकुलेट करो एट x इज इक्वल टू 1, और क्या गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है. सो दैट सोल्यूशन, इसका जो सोल्यूशन आने वाला है, इसका सोल्यूशन क्या आने वाला है, y. So that solution actually takes value 1. So that solution actually takes value 1 if I put x is equal to 0. तो क्या given है, y at 0 is equal to 1. So this is actually your initial condition. This implies your x naught or the first iteration of x is 0 and your y naught, the first approximation is 1. ठीक है, तो यहाँ से आपको x naught और y naught के वैल्यूज समझ में आ जाए. सॉरी. Now in solution, so here initial condition is given, y is equal to 1, that is y at 0 is equal to 1, correct. And also h is given, the step function. Okay, इसका क्या क्या यूज होना है आपको नीचे सॉल्यूशन में समझ में आ जाएगा. तो आप ये पैटर्न याद रखो, सारे एग्जाम्पल में आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, करेक्ट. यहाँ से आपको एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है, y. तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, एक इनिशियल कंडीशन गिवन होगी, द लाइक से y at x naught. ओके, सो दिस 0 इज एक्चुअली x naught एंड दिस 1 इज एक्चुअली y naught. सो दिस इज योर इनिशियल कंडीशन, और h की वैल्यू गिवन होगी. ठीक है, नाउ अप्लाई द ऑयलर्स फॉर्मूला. सो दैट फॉर्मूला इज लाइक दिस, yn plus 1 is equal to yn plus h multiplied by f of xn comma yn. Okay, where h is the interval or the difference between two consecutive values of x. So I can define this h as xn is equal to x naught plus n into h. Okay, और ये जो yn plus 1, इसका मीनिंग क्या है, y at xn. So y at xn is actually defined as yn. Okay,
नाउ स्टार्ट करो। ओके पहले आपके पास क्या है, x नॉट y1 आपके पास आ रहा है, सो वो पहले मेंशन करो। सो डिवाइड बाय dx क्या आएगा, जो भी फंक्शन गिवन होगा दैट वी कॉल इट एज f ऑफ xy। तो यहाँ पे क्या गिवन है, f ऑफ xy इज इक्वल टू x प्लस वाई। सो फर्स्ट कॉपी दैट फंक्शन, सो f ऑफ xy इज इक्वल टू x प्लस वाई। फिर आपको एग्जांपल में क्या गिवन है, इनिशियल कंडीशन x इज इक्वल टू 0 दैट इज द x नॉट इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 मींस y नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो दिस आर योर इनिशियल कंडीशन। आप उसके बाद क्या करो, कैलकुलेट। सो सिंस x नॉट y नॉट आर गिवन, सो कैलकुलेट f ऑफ x नॉट y नॉट। सो f ऑफ x नॉट y नॉट क्या आने वाला है, f ऑफ x नॉट y नॉट यहाँ पे पुट करो, x की जगह पे x नॉट, y की जगह पे y नॉट। सो इट इज एक्चुअली x नॉट प्लस y नॉट, बट x नॉट इज 0, y नॉट इज 1, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1। तो f ऑफ x नॉट y नॉट की वैल्यू 1 आ रही है। ओके जो f आप कैलकुलेट करते हो ना, जिस n के लिए आप f कैलकुलेट करते हो ना, वही n आपको ऑयलर्स फॉर्मूला में पुट करना है। तो आपने f ऑफ x नॉट y नॉट कैलकुलेट किया है, तो जस्ट पुट 0। ओके x नॉट मतलब 0 है ना, सफिक्स में 0 है, तो जस्ट पुट n इक्वल टू 0 इन दिस फॉर्मूला। देखते हैं क्या मिलता है आपको। सो इफ आई पुट n इक्वल टू 0 यू विल गेट y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। हाँ सो n इक्वल टू 0, सो हियर यू विल गेट y नॉट इज इक्वल टू n इक्वल टू 0, सॉरी हाँ सॉरी n इक्वल टू 0, सो 0 प्लस 1 इज y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस h f ऑफ x नॉट कॉमा y नॉट। ओके आई विल रिपीट ऑल माई स्टेप्स। उन्होंने बोला था कि ऑयलर्स फॉर्मूला से सॉल्व करो, तो मैंने पहले फॉर्मूला मेंशन किया, वहाँ पे सारी चीजें मैंने मेंशन की। h क्या होता है, h इज द इंटरवल दैट इज द xn इज इक्वल टू x नॉट प्लस nh। ओके और yn एक्चुअली क्या होता है, y एट xn। ओके और फिर उसके बाद डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू f ऑफ xy। फ्रॉम दिस रिजल्ट यू विल हैव द वैल्यू ऑफ f ऑफ xy व्हिच इज x प्लस y। फिर आपके पास x नॉट गिवन था, y नॉट गिवन था, तो आपने f ऑफ x नॉट y नॉट कैलकुलेट किया। ओके आपको मैंने क्या रिजल्ट दिया कि जिस n के लिए आप f कैलकुलेट करते हो, सेम n आपको ऑयलर्स फॉर्मूला में पुट करना है। तो आपने x नॉट y नॉट के लिए कैलकुलेट किया है, तो n इक्वल टू 0 आप इसमें पुट करो, यू विल गेट y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस h इंटू f ऑफ x नॉट y नॉट। ओके सो इन नेक्स्ट स्लाइड यू विल सी दैट y1 इक्वल टू y नॉट प्लस h इंटू f ऑफ x नॉट y नॉट। सारे वैल्यूज पुट करो। y नॉट आपका क्या था, इनिशियल कंडीशन 1, h आपका क्या है, स्टेप इंटरवल, ओके दैट इज द 0.2 है ना, और 0.2 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x नॉट y नॉट आपने अभी कैलकुलेट किया था, वो आ रहा था 1। ठीक है और कैलकुलेट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y1। तो y1 आपका क्या आ रहा है 1.2, करेक्ट। बट तो ये y1 एक्चुअली y1 का मीनिंग क्या होता है, y1 आपका आंसर क्या आ रहा है 1.2, बट y1 का मीनिंग क्या होता है y एट x1। आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि y1 एक्चुअली क्या है, y एट x1, y नॉट आपका क्या है y एट x नॉट। तो y1 का मीनिंग क्या होता है y एट x1। तो एक्चुअली क्या मिल गया आपको, y एट x1 इज इक्वल टू 0.2। आप बस अभी क्या करो, x1 कैलकुलेट करो, है ना। तो x1 का मीनिंग क्या होता है, x1 इज इक्वल टू फ्रॉम दैट रिजल्ट आपको क्या पता है कि xn इज इक्वल टू x नॉट प्लस nh। ये रिजल्ट ही मैंने आपको दिया है ना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ h एक्चुअली। ओके तो वहां से n इक्वल टू क्या पुट करो, आपको x1 चाहिए तो n इक्वल टू 1 पुट करो, तो x1 इज इक्वल टू x नॉट प्लस h। तो यहाँ से आपको x1 मिल जाएगा, और x1 की वैल्यू क्या है 0.2, करेक्ट। तो वही मैंने नीचे दिया है। तो y1 यहाँ पे 1.2 आ रहा है, ओके और आपका x1 क्या आ रहा है 0.2। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि y एट x1 दैट इज y एट 0.2 इज इक्वल टू 1.2। बट क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रखो, आपको कैलकुलेट क्या करना है y एट 1। सो कंटिन्यू करो, तो ये स्टेप्स आपको कंटिन्यू करने अंटिल एंड अनलेस यू विल गेट y एट 1। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, अभी आपके पास x1 y1 है, तो f ऑफ x1 y1 कैलकुलेट करो। f ऑफ x1 y1, f ऑफ xy आपको पता है f ऑफ xy क्या डिफाइन किया हमने, या क्वेश्चन में क्या गिवन है, f ऑफ xy इज इक्वल टू x प्लस y। तो इसमें x की जगह पे x1 डालो, y की जगह पे y1 डालो, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 प्लस y1, बट x1 क्या था 1.2, y1 क्या था 0.2, एडिशन क्या आ जाएगी 0.4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x1 y1। आपने ये कौन से वैल्यू के लिए कैलकुलेट किया, x1 y1 के लिए, सो जस्ट पुट n इक्वल टू 1। जिस वैल्यू के लिए कैलकुलेट किया, जिस n के लिए आपने f कैलकुलेट किया, वही n आपको ऑयलर्स फॉर्मूला में पुट करना है। सो इन दैट ऑयलर्स फॉर्मूला जस्ट पुट n इक्वल टू 1। ओके तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ये y1 था ना, यहाँ से y2 लिखो तो क्या आ जाएगा y2 इज इक्वल टू y1 आता तो यहाँ पे y0, तो y2 आता तो यहाँ पे y1 प्रीवियस नंबर होता है ना, और ये सेम y1 आपको अंदर कैरी करना है, तो h इंटू एफ ऑफ x1 y1। इसमें सारे वैल्यूज पुट करो, y1 आपको पहले ही पता है 1.2, h आपको पता है 0.2, f of x1 y1 आपने कैलकुलेट किया है। इफ आई पुट ऑल दिस वैल्यूज यू विल गेट एक्चुअली y2।
ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको y2 मिल रहा है, बट y2 क्या होता है बेसिकली, ओके, सो y2 इज इक्वल टू 1.48, बट हाउ यू डिफाइन दिस y2? y2 इज एक्चुअली y एट x2, y एट x2, तो आप सो y एट x2 इज इक्वल टू 1.48, तो आप यहाँ पे पहले क्या करो, x2 कैलकुलेट करो। तो x2 आप x2 की डेफिनेशन क्या है, इन जनरल xn इज इक्वल टू x0 प्लस nh, सो x2 इज इक्वल टू x0 प्लस 2h, h पुट करो, सो विल गेट x2 एज 0.4। तो क्या समझ में आ रहा है आपको, यहाँ से y2 की वैल्यू आ रही है 1.48, x2 की वैल्यू आ रही है 0.4, सो देयरफॉर y एट x2, ओके, दैट इज y एट 0.4 इज इक्वल टू 1.48, ओके। तो यहाँ पे ये आपको सेकंड इटरेशन मिल रहा है, बट यहाँ पे ब्रैकेट में अभी भी क्या है 0.4 आ रहा है, आपको क्या चाहिए 1 चाहिए। तो ये रिपीट करो, until and unless you will get 1 in this bracket, और until and unless you will get value of xn to be 1, ओके ओके। तो x2 y2 आ रहे हैं, तो फिर से f of x2 y2 कैलकुलेट करो, ठीक है। f of x2 y2 इज इक्वल टू व्हाट, x2 प्लस y2, ये f of xy एक्चुअली आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन होता है, सो दैट वैल्यू इज 1.88। तो आपने f कैलकुलेट किया था n इक्वल टू 2 पे, तो सेम n इक्वल टू 2 वहाँ पे पुट करो, यू विल गेट y3 बाय Euler's formula, you will get y3 is equal to y2 plus h f of x f in bracket x2 comma y2, सारे वैल्यूज पुट करो, ओके। y3 इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है 1.48, h इज 0.2, f of x2 y2 अभी कैलकुलेट किया था, सो यू विल गेट y3 एज 1.8560, ओके। बट y3 का मीनिंग क्या होता है, सो y3 इज इक्वल टू 1.8560, बट y3 का मीनिंग क्या होता है, y3 इज एक्चुअली y एट x3, करेक्ट। तो आप पहले x3 कैलकुलेट करो, तो x3 क्या आएगा, x3 इज इक्वल टू x0 प्लस 3 टाइम h, करेक्ट। सो बट h इज 0.2, दिस इंप्लाइज योर h3 इज 0.6, है ना। तो y3 आपका था 1.8560, x3 आपका था 0.6, दिस इंप्लाइज y एट x3, दैट इज y एट 0.6 इज इक्वल टू 1.8560, ओके। अभी भी आपके पास ब्रैकेट में y एट 1 नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या है कि आपको कैलकुलेट करना है y एट 1, दिस इज योर टारगेट, ओके। फिर से एक बार परफॉर्म करो, ओके। तो x3 y3 आ रहे, तो f of x3 y3 कैलकुलेट करो, f of x3 y3 इज व्हाट, आपके पास क्या गिवन था, f of xy इज डिफाइंड एज x प्लस y, है ना, f of xy इज डिफाइंड एज x प्लस y, देयरफॉर f of x3 y3 इज इक्वल टू x3 प्लस y3, x की जगह पे x3, y की जगह पे y3, बट x3 इज 1.8560 एंड sorry, x3 is 0.6 and y3 is 1.8560, so this implies f of x3 y3 is 2.45 and 60, okay. So by Euler's formula, just put n equal to 3 in that Euler's formula, you will get y4 is equal to y3 plus h f in bracket x3 comma y3, सारे वैल्यूज पुट करो, y3 की वैल्यू, ओके, h की वैल्यू, then f of x3 comma y3 is actually 2.4560, that is 2.4560, and if I simplify this, or if I calculate this, you will get the value as 2.347, so this is the value of y4, but y4 is what, y at x4, तो पहले आप x4 कैलकुलेट करो, तो x4 आपका क्या है, x0 प्लस 4 टाइम्स h, तो विच इज 0.8, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है आपको, यहाँ से y4 आपका 2.3472 आ रहा है, x4 आपका 0.8 आ रहा है, ओके। तो आपका y क्या होगा, y at 0.8 इज इक्वल टू 2.3472, बट अभी भी आपके पास ब्रैकेट में 1 नहीं है। एक और बार ट्राई करो, ओके, अगेन कैलकुलेट f of x4 y4, ओके, अगेन पुट n इक्वल टू 4, यू विल गेट y5 इक्वल टू दिस, सारे वैल्यूज पुट करो, ओके, यू विल गेट दिस। तो यहाँ भी आपके पास y5 आ रहा है, बट y5 बेसिकली क्या होता है, y एट x5, ओके। तो आप पहले x5 कैलकुलेट करो, तो x5 आपका क्या आएगा, x0 प्लस 5 टाइम्स h, करेक्ट। and if I put h is equal to 0.2, here you will get now x5 is equal to 1, so this implies y5 equal to 2.9766, okay, x5 is equal to 1, and this implies y at 1 is equal to 2.9766, okay. और आप देखो, यही आपका क्वेश्चन था कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y at 1, okay. So if I check this question again, तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, तो आप एक क्वेश्चन चेक करो, यहाँ पे आपको कैलकुलेट क्या करना था, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y at 1, ठीक है। सो एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, क्विकली स्क्रॉल डाउन,
ठीक है. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. सो y at 1 इज इक्वल टू 2.9766. ठीक है. तो इसमें एक्चुअली जो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स है, कितने स्टेप्स में वो प्रॉब्लम कवर हो रहा है, इट डिपेंड ऑन दी गिवन एग्जाम्पल. उन्होंने x इक्वल टू 1 के लिए बोला था, इसलिए 5th इटरेशन पे ये कंप्लीट हो रहा है. ओके. अगर उन्होंने मगर उनका क्वेश्चन अगर ये था कि कैलकुलेट y अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y एट 0.8, तो शायद आपके प्रीवियस स्टेप में हो जाता, क्योंकि आपने प्रीवियस स्लाइड में ही वो पार्ट कैलकुलेट किया था, है ना, y एट 0.8. तो अगर एग्जाम में आता है कि कैलकुलेट करो y एट 0.6, तो आपका यहीं पे क्वेश्चन हो जाता है ना. सो इट डिपेंड ऑन दी एग्जाम्पल कि आपको कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में वो आंसर मिल जाएगा. ओके. सो इज देयर एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? Let me check. So h is always given in the question. Is there any other doubt? Okay. So I will take one more example on this particular topic, Euler's method, and I think इससे सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी. Now this is the last example, so quickly go through कर रहा हूँ. Okay. And there are only 3 methods. तो आज के लेक्चर में एक मेथड हो गई, only 2 methods are remaining. Okay. So let's take the second example. Use Euler's method to find or to solve the equation dy by dx is equal to 1 plus xy. So here our function is different. Our function is 1 plus xy. Correct. Subject to the condition x is equal to 0, y is equal to 1. This is your initial condition, and tabulate y for x where x defined like this. Okay. तो अब ये जो न्यू नोटेशन यहाँ पे आ रहा है ना, okay, इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए. Okay. हाँ, तो इसका मीनिंग क्या है? ये जो ब्रैकेट में वैल्यू गिवन है, दिस इज एक्चुअली h. ओके. तो h इज इक्वल टू क्या गिवन है? 0.1, है ना. और आपको x कौन से केस में कैलकुलेट करना है? 0.5 के लिए. एंड कैलकुलेट करो y. ओके. ये जो लास्ट में वैल्यू है वो y की वैल्यू, हमेशा x की इनिशियल वैल्यू 0 ही होगी, तो यहाँ पे हमेशा 0 आने वाला है. ओके. आपको ये दिखना है कि ये होता है h. ओके. और इस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है. ये नोटेशन का मीनिंग होता है ना. तो यहाँ पे h इज इक्वल टू 0.1 गिवन है, और आपको कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ y एट 0.5. करेक्ट. ओके. तो स्टार्ट करो. So x naught y naught given है ना. So this is the Euler's formula, y n plus 1 is equal to y n plus h into f in bracket x n comma y n. Okay. So where h is the interval which is defined as x n is equal to x naught plus n h. Okay. And y at x n is equal to y n. या as it is copy paste करो. Okay. So function क्या है यहाँ पे? f of x y. Your f of x y is 1 plus x y. Okay. ये end तक आपको यूज करना है. This is your f of x y. ठीक है. इसमें मिस्टेक मत करो, अदरवाइज सारा आगे का रॉन्ग आ जाएगा. ओके. अभी आपके पास x नॉट y नॉट है, x नॉट इज 0, y नॉट इज 1. सो x नॉट इज 0, जो भी गिवन होता है दैट इज योर x नॉट एंड y नॉट. ओके. सो व्हाटएवर द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर गिवन इन द एग्जांपल, दोस वैल्यूज आर एक्चुअली द योर x नॉट एंड y नॉट. ओके. सो y नॉट इज इक्वल टू 1. तो जस्ट कैलकुलेट f एट x नॉट y नॉट. तो योर f एट x नॉट y नॉट इज 1 प्लस x नॉट y नॉट, दैट इज 1. तो f ऑफ x नॉट y नॉट की वैल्यू आपको मिल गई. यहाँ पे जो f आपने कैलकुलेट किया था वो n इक्वल टू 0 केस में कैलकुलेट किया था. तो जस्ट पुट दिस n इक्वल टू 0 इन दिस Euler's formula. You will get y1 is equal to y naught plus h f in bracket x naught y naught. Okay. So I will show this part in next slide. So here I will get y1 is equal to y naught plus h f in bracket x naught y naught. Correct. हाँ, यहाँ पे y नॉट पुट करो. ओके. h पुट करो. h इज 0.1. ओके. आपको मैंने एक्सप्लेन किया था. f ऑफ x नॉट y नॉट आपने कैलकुलेट किया था विच इज 1. सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट योर y1 टू बी 1.1. अगेन सेम लॉजिक, y1 आपको मिल रहा है. सो y1 इज इक्वल टू 1.1. बट y1 का मीनिंग क्या होता है कि y एट x1, है ना. सो y एट x1 इज इक्वल टू 1.1. तो आप पहले x1 कैलकुलेट करो. x1 का मीनिंग क्या है? हियर इन जनरल आई डिफाइन xn एज x नॉट प्लस n times h. So just put n is equal to 1, you will get x1. So if I put n equal to 1, you will get x naught plus 1 into h, है ना, n into h. So यहाँ से आपको x1 मिल जाएगा. x1 is 0.1. तो इसका so this implies y1 is equal to 1.1, x1 is equal to 0.1,
therefore y at x1 that is y at point 1 is equal to 1.1. बट आपको कैलकुलेट कहाँ पे करना है, आई गेस आपको ये कैसे कैलकुलेट करना है, y at point 5. तो इसको रिपीट करते जाना होगा. ओके, तो x1 y1 है तो यहाँ से f of x1 y1 कैलकुलेट करो विच इज 1 प्लस x1 y1 है ना, कैलकुलेट करो, विल गेट 1.11. अगेन ये आपने कैलकुलेट किया था n इक्वल टू 1 पे, तो n इक्वल टू 1 ऑयलर्स फार्मूला में पुट करो, विल गेट दिस दैट इज y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h इंटू f of x1 y1 है ना, h इंटू f of x1 y1. तो y2 कैलकुलेट करो, y1 यहाँ से पुट किया, h.1 f of x1 y1 कैलकुलेट किया था, सो यू विल गेट y2 एज 1.211. बट y2 का मीनिंग क्या होता है, y at x2. तो आप पहले x2 कैलकुलेट करो, तो x2 की डेफिनेशन क्या है, x0 प्लस 2 टाइम्स h that is 0.2. okay, so this implies your y2 is 1.211, y2 is 1.211, x2 is 0.2, and y at 0.2, this implies y at 0.2 is equal to 1.211. okay, and this implies your function so here you will get the value of y but at 0.2. आपको कैलकुलेट क्या करना है, y at 0.5. okay, तो फिर से f of x2 y2 कैलकुलेट करो, ये मिल गया आपको. okay, repeat same steps. now I will skip this part. okay, so y3 कैलकुलेट करो, you will get something like this. y3 आता तो x3 भी कैलकुलेट करो, so your x3 is 0.3, correct. so this implies your y3 is 1.3352, x3 is 0.3, and this implies y at x3 that is y at 0.3 equal to 1.335. but अभी भी आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है y at 0.5. परफॉर्म वन मोर टाइम. सो f of x3 y3 कैलकुलेट किया, फिर इसे फॉर्मूला कंसिडर किया, देन y4 कैलकुलेट करो, x4 कैलकुलेट करो. ओके, फिर आपको क्या मिलता है, y4 इज इक्वल टू दिस, x4 इज इक्वल टू 0.4. सो विल गेट y at 0.4 इज इक्वल टू दिस. अभी भी आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है. तो एक और बार f of x करो, y4 कैलकुलेट करो, है ना, एंड देन y इनवर्स फार्मूला विल गेट दिस. तो y5 आपका यहाँ पे आ रहा है 1.6343, x5 आपका अभी आ रहा है 1.0. सॉरी हाँ, x5 आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ तो मैंने मिस्टेक की है, यहाँ पे 0.1 है, so this is actually 0.5. okay, so your y5 is equal to 1.6343, your x5 is 0.5. this implies y at 0.5 is equal to 1.6343. इतना सिंपल है, ठीक है. वही आपका क्वेश्चन था, अपने स्टार्ट ही यहाँ पे. तो ये जो न्यू नोटेशन यहाँ पे आ रहा है 0 इन ब्रैकेट 0.1, तो ये 0.1 एक्चुअली होता है h, और जो लास्ट वैल्यू है उस वैल्यू के लिए आपको y कैलकुलेट करना है. सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यू मेथड, ऑयलर्स मेथड. इफ यू हैव एनी डाउट, ओके, सो सर हाउ द वैल्यू ऑफ h इज एक्चुअली, सो दैट वैल्यू सी एक्चुअली अगर आपको इन जनरल सॉल्व करना है ना, तो ये आप अपने लेवल से भी ले सकते हो. ओके, ये एक्चुअली चॉइस आपकी भी हो सकती है. ओके, बट जनरली क्या होता है, अगर आपने यच ओके अगर कुछ स्टूडेंट ने 0.1 लिया, बट कुछ स्टूडेंट ने अगर 0.3 लिया, ठीक है, सो इट डिपेंड ऑन एच कि कितना आपको टाइम जाने वाला है टू फाइंड दैट अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन. इसलिए जनरली एग्जाम में एग्जाम्पल में वो मेंशन ही करते कि आपको एच क्या लेना है, सो दैट सारे स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल आ जाएंगे. बट एच मेथड के टाइम पे उन्होंने मेथड में ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि आपको यही पर्टिकुलर एच लेना है. ओके, बट जैसे जैसे आप एच वारी करोगे वैसे वैसे आपके नंबर ऑफ इटरेशंस, नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशंस आपके इंक्रीज हो जाएंगे. ओके, सो जस्ट टू मेक इट यूनिफॉर्म, ओके, एग्जाम में वो एच आपको गिवन होगा. तो डिसाइड मतलब आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, रैंडम चॉइस यू कैन टेक फॉर एच. देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट एक्स व्हेन वी गेट इट बाय एडिंग टू प्रीवियस. यस. तो अगर आपको वो समझ में आता है कि अगर यच आपको पता है 0.1, तो आप डायरेक्टली x1, x2, x3, x4 कैलकुलेट कर सकते हो. तो आप डायरेक्टली भी वो मेंशन कर सकते हो. ओके, नो नीड टू कैलकुलेट सेपरेटली. Okay, so I have recorded this session and I will upload at least this to his lecture immediately. Okay. See, why and where do we use this method? So there are some real life application that you will see in this. I think that part I left. Okay, so that is there in Unit 1. It is there in Unit 1 applications of this differential equation. Okay, I will cover that part immediately after this Unit 2. Last two methods are there.
जैसे आपका यूनिट 2 कंप्लीट होता है उसके बाद एप्लीकेशंस के ऊपर ही फोकस करना है, एंड वेर यू कैन अंडरस्टैंड वेर वी हैव टू यूज दिस मेथड्स. ओके, बट न्यूमेरिकल मेथड्स आर स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. What is your question, Saurabh? Can you post it again? Can you post it again? Okay, so others can leave this session or other can end this session. I will just solve one query of Saurabh. There is no need to calculate x when you can get it by adding h to previous x. Yes, no need to calculate that x separately, but at the end you just mention that y at say x naught, y at x4 is equal to that value. मतलब आप y4 डायरेक्टली आपने y4 डायरेक्टली मेंशन किया है ना, तो उसमें आप आगे ये भी मेंशन करो कि y4 का मीनिंग क्या है, y at this particular value is equal to that. ठीक है, तो आप वो डायरेक्टली जब करना है तो आप वो करो, बट एटलीस्ट कहीं पे मेंशन करो. okay? यहाँ पे आई विल शो यू ये x नॉट का जो कैलकुलेशन था है ना, x1 इज इक्वल टू x नॉट प्लस ch, ये आपको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है. आप इसके नीचे डायरेक्टली y1 इक्वल टू 1.1 लिखते हो ना, तो यहाँ पे ये एक स्टेप आप ऐड करो, क्योंकि हम जब चेक करने वाले जब भी आपका आंसर हम चेक करते हैं ना, हम बस यही फोकस करते हैं कि y एट विच वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है ना. तो ये पार्ट चेक करने के लिए आप एटलीस्ट ये मेंशन भी करते हो, डायरेक्टली इसमें x की वैल्यू मेंशन करते हो तो भी चलेगा. तो ये आप ये चीज़ें स्किप कर सकते हो इफ यू वांट. हाँ, okay, so with this I will end this session. If you have any doubt you can share on WhatsApp also.